ठीक है. So we were discussing about the reactions of the alkynes which having the terminal hydrogen, get terminal alkyne and form the alkynide. ठीक है. So formation of alkynide, some other reagents also form this alkynide, right? For example, see this formation of alkynide. Which reagents are responsible to form this alkynide? See this. Very simple reaction. Some metallic salt like this R, say triple bond CH. Okay, and this will be react with CuCl. We can take this CuCl in presence of NH4OH. Otherwise, we can take this AgNO3 in presence of NH4OH. Otherwise, can take AuCl, gold chloride, in presence of NH4OH. NH4OH is what? Medium. So under this medium, when any metallic halides react, then it forms corresponding compound like R, C, triple bond C, Cu. It gives the brown precipitate. Brown PPT will get, and here it will give the R, C, triple bond C and Ag. And because of the silver, it gives the white precipitate. Now here it will give the R, C, triple bond C and Au. And it is what? Golden PPT. Golden PPT. So because of the formation of PPT, these reagents are used for the identification of terminal alkynes. So by using this, we can identify the terminal alkynes, right? So we can see that above reagents used for identification of terminal alkyne. Terminal alkynes. Okay. And one more important part, this terminal alkyne when treated with the acid, mineral acid, then it form the corresponding alkynes, right? You can say that metal alkylidine, right, react with mineral acid, mineral acid to give alkyne. ठीक है, जैसे R से triple bond Cm, it is treated with the HCl. Otherwise, it is treated with what? BCl. तो यहाँ पे पता चलेगा कौन सा रिप्लेस हो रहा है. तो we get this what? C triple bond CH, and here we get this what? C
ट्रिपल बॉन्ड पीडी, ठीक है, दैट इज रिएक्शन. अच्छा, से after that we discuss about the reaction with Grignard reagent, otherwise organometallic compound alkyl lithium. These are also some important reaction. We'll see that. I've done. Can I move? चलिए देखते हैं. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए. Right. Okay. Next reaction is what? Reaction with, there is important reaction. Grignard reagent and alkyl lithium. So reaction with the Grignard reagent, otherwise alkyl lithium. देखते हैं क्या रिएक्शन होता है. एक न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करेगा. जैसे if I am taking this alkyne, so this reaction is given by only terminal alkyne, right? Only terminal alkyne, right, react. So Grignard reagent and alkyl lithium can react with the terminal alkyne like this one. और ये रिएक्ट करेगा किससे? Like this. यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग CH3 MgBr. This is Grignard reagent, and here we can take this alkyl lithium CH3Li. तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है अपने को? क्या मिलेगा? R C ट्रिपल बॉन्ड C MgBr प्लस CH4. देखिए ये एक अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया. दिस इज व्हाट अनदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? So we can say that this is what new Grignard reagent. और हाइड्रोकार्बन मिला. वैसे यहाँ पे होगा, देखो ये H इस CH3 के साथ जाएगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? RCCHLi एंड प्लस देगा यहाँ पे CH4. दिस इज द प्रोडक्ट. न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. lithium. So this is the reagent. अब इसमें रिएक्शन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड व्हाट?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी तक जितने भी रिएक्शंस हमने देखे हैं वो सब किससे था? टर्मिनल हाइड्रोजन या टर्मिनल अल्काइल विथ X2 OH माइनस, और इसे हम कहते हैं हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड, हाँ। ठीक है, देखते हैं हाइपोहैलाइड कैसे बनता है। तो होता क्या है इसमें, जो ये NaOX है ना, वो ऐसा डिसोसिएट होता है, NaO माइनस और X प्लस। तो दिस इज एज अ इलेक्ट्रोफाइल। समझा ये? तो दैट इलेक्ट्रोफाइल विल रिएक्ट और टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। जैसे इफ आई एम राइटिंग हियर R C CH, it treated with the NaOCl, या फिर हम यहाँ पे NaOH और Cl2 भी ले सकते हैं, that will be also reagent. It will provide hypochlorite, ठीक है। So what product will get here? अब देखो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे? क्लोरीन से, और ये H इसके साथ जाएगा तो NaOH बनाएगा। तो अवर प्रोडक्ट विल बी व्हाट? R C C Cl, right? This is our main product. सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा यहाँ पे। अगर यहाँ पे एसिटिलीन ले लिया मैंने, instead of terminal alkyl, if I'm taking this acetylene and it is treated with the excess NaOCl, तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे, and it form like this product. समझा ये? ठीक है। I2 का भी रिएक्शन ऐसे ही देख लेंगे हम लोग। सपोज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद I2, यहीं पे देख लेते हैं। Like I'm taking this the I2 and NH3, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? I C ट्रिपल बॉन्ड C है। Its name is what? Diiodoacetylene। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारे रिएक्शंस के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी एडिशन रिएक्शन, विच इज गिवन बाय दिस व्हाट? पाई बॉन्ड। अभी तक हमने कोई भी रिएक्शन नहीं देखा जिसमें पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सिर्फ टर्मिनल हाइड्रोजन से जो रिएक्शन हो रहे हैं वो रिएक्शन हमने देखे अभी तक, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस रिएक्शन ड्यू टू द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की वजह से क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो देखते हैं अभी। चलिए नोट डाउन दिस पार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट? रिएक्शन ड्यू टू पाई बॉन्ड। ड्यू टू पाई बॉन्ड था। पाई बॉन्ड से रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
तो ये क्या देता है रिएक्शन, पाई बॉन्ड की प्रेजेंटेशन में क्या रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज व्हाट, एडिशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो ये एडिशन रिएक्शन पहले हम लोग देखते हैं। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, कितने टाइप्स के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सारी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ए, दैट इज व्हाट, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। ठीक है, सो अल्काइंस गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या फॉर्म करेगा, कार्बन आयन। मैं एक रिएक्शन बताता हूं इसमें। तो पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन लिखता हूं, जनरल रिएक्शन। Electrophilic addition reaction. See, this electrophilic addition reaction is what? In this case, when this alkyne, okay, react with electrophile, so first of all, this electrophile will form this what, intermediate. After addition, it form this what, intermediate. What kind of intermediate? So no, it give this vinyl carbocation. That is very most important part. यहाँ पे एक concept clear होगा आपका. Here it form this vinyl carbocation. This is what, vinyl carbocation. But at the same time, when I'm going to consider this alkene, same time I'm going to consider this alkene. So when I'm considering this alkene, this is what, alkyne. So in case of alkene, double bond will be here, and when it go for the electrophilic addition, then what product will get here? Here we'll get this product intermediate like R, CH, CH3 plus. Now it is called what? Alkyl carbocation. Carbocation, right? So in these two compounds, we can say that alkyl carbocation will be more stable than vinyl carbocation. Therefore, yes, reactivity of alkene are greater than alkynes, because we know that, okay, because we know that reactivity
of substrate is directly proportional to stability of intermediate. Reaction intermediate, huh? That is what? Intermediate. ये बात आपको समझ में आ गई क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए जाते हैं तो अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन द अल्काइंस. रीजन बिहाइंड दैट, it form the intermediate, and intermediate of the alkyne means alkyl carbocation which formed due to the alkene is more stable as compared to the intermediate formed by this alkyne which is vinyl carbocation. So because of that alkene is more reactive. ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के. हम electrophilic addition. First, addition of X2, that can be Cl2, Br2 और I2. देखो यहाँ पे रिएक्शन सिंपल है, हमें लेना कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अल्काइन अगर एक्सेस Cl2 Br2 से रिएक्ट कर रहा है या 2 मोल ऑफ द Cl2 Br2 से रिएक्ट कर रहा है तो टेट्रा हैलाइड बनाएगा, और अगर 1 मोल है तो वहां पे क्या बनाएगा? सिस या ट्रांस विनाइल हैलाइड. कैसे देखो यहाँ पे जरा रिएक्शन देखो, आपको समझ में आएगा. जैसे if I am taking this reaction R C triple bond R plus X2 in presence of CCl4, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगा. और इसको मैकेनिज्म में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको कैसा होता है ये सीन एडिशन या फिर एंटी एडिशन. ये देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, अपने बाप ट्रांस बन गया, राइट. बट अगर एक एक्सेस मैंने ले लिया, यहाँ पे 2 मोल ऑफ X2 ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे एक बार और एडिशन होगा, और वन मोर एडिशन गिव्स दिस व्हाट? टेट्राहैलाइड. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू द सिंगल बॉन्ड. ठीक है. So addition, we can say that both addition ठीक है, both addition follows the Markovnikov rule. Markovnikov rule फॉलो करेगा. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे. जैसे if I am taking here CH3 CH2 C triple bond CCH3, and here it is what? Br2. 1 मोल हो गया. CCl4 at 0 डिग्री सेल्सियस. What product will get here? यहाँ पे 1 मोल लिखा है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया. देन व्हाट प्रोडक्ट वी गेट हियर? हमें हमेशा ट्रांस मिलेगा यहाँ पे एडिशन. ये यहाँ पे अगर Br हो गया तो इसके ट्रांस में आएगा Br यहाँ पे, और ये क्या हो गया यहाँ पे?
CH3 और यहाँ पे क्या हो गया C2H5, राइट। रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन कैसा होता है? Cl2 will be more reactive than Br2, Br2 will be more reactive than I2. One important note here. अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी चीज पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। नोट देखो क्या होगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट नोट। सो नोट इज व्हाट, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, फॉर्म डाई as well as tetra. Hello. Derivative. But iodo या iodine form only diiodo derivative. It will not convert into the, see this is important part, huh? Only diiodo बनाएगा ये. It will not convert into the tetra. Reason behind that, it is larger atom, बहुत बड़ा एटम होता है, और दो आयोडीन कभी भी एडजेसेंट कार्बन पे एक साथ नहीं रह सकते इस पोजीशन पे, क्योंकि बड़ा एटम है तो वहां पे क्या होगा, फिर से वो आपस में I2 निकाल करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। गेटिंग अ पॉइंट? So that is the important part. It will not give the tetra, only give what? Di. समझ में आया? अरे आज कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हो गया? यस सर। Oh my God. बुलाना पड़ता है, इंटरेक्टिव लेक्चर आप लोग को लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो अगर I2 है और CCl4 है, ये क्या बनाएगा यहाँ पे, R C, और वो भी कैसा होगा, ट्रांस पोजीशन पे होंगे, हाँ, I R I और R, डबल बॉन्ड। एक्सेस लिया तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि I2 यहाँ पे आया तो फिर से वो निकाल करके डबल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट। एडिशन ऑफ HX, सी दिस एडिशन ऑफ HX, in addition of HX, we'll see that the product of reaction is haloalkene और geminal dihalide, geminal dihalide। कैसे होगा रिएक्शन, देखो यहाँ पे, HX, यहाँ पे R H डबल बॉन्ड CXR, एक और HX ले लिया अगर, तो अब देखो
ये वाला एक्स जो वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन लेस है, एज पर मार्कोनी का रूल। ये कैसा होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा, और ये कैसा होगा, पार्शियली निगेटिव। तो ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, राइट, तो यहाँ पे अटैक करेगा। तो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, आर सी एच एच एक्स एक्स और आर, और एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन हो गया, दैट इज व्हाट जेमिनल डाइहाइलाइड। गॉट इट। इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी देखते हैं। एच एक्स में हमें पता है कि एच आई विल बी मोर रिएक्टिव देन एच बी आर, एच बी आर भी मोर रिएक्टिव देन एच सी एल, ठीक है। देखिए रिएक्शन फटाफट यहाँ पे, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं, दैट इज व्हाट एडिशन ऑफ एच एक्स that can be HCl and HBr can be facilitated by using R, C double bond OX and Al2O3। देखते हैं यहाँ पे, जैसे C6H13 3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रिएक्ट करेंगे HBr से, ठीक है। इसके प्रेजेंटेशन में CH3 C डबल बॉन्ड OBr, Al2O3, सॉरी O2 ले लिया, and CH2Cl। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या मिलने वाला अपने को, प्रोडक्ट C6H13 C, here we get this what Br double bond CH2, this is the reaction। it means what vinyl halide is possible, huh? विनाइल हैलाइड, ये प्रेजेंटेशन या फिर कम टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ विनाइल हैलाइड, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एडिशन ऑफ HOX, इसका एडिशन कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये एडिशन जो होता है ना, वो भी मार्कोनी का रूल होगा, एज पर मार्कोनी का रूल ना। तो आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, एकदम सिंपल सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सिंपल रिएक्शन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने, किससे, HOX, क्या मिलेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको पता है ना
ये जो पार्ट होता है वो निगेटिव होगा और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो प्रोडक्ट जो मिलेगा पहला कुछ ऐसा मिलेगा, वो एच यहाँ पे अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स आ गया। अब ये जो एक्स आया ये जाएगा किसके लिए, रीअरेंजमेंट के लिए, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, टॉटोमेरिज्म। मैं आपको अभी और रिएक्शन से बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर सॉरी, this bond will shift here and form the double bond, and this bond will what, shift here, और ये H यहाँ पे आ जाएगा। सो प्रोडक्ट जो बना वो कैसा बना अपने पास, फाइनल प्रोडक्ट विल बी व्हाट, आफ्टर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के बाद क्या बना प्रोडक्ट, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इज व्हाट, CH2X। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अगर इसका डायरेक्ट एडिशन अगर शॉर्टकट में देखने जाऊं, व्हाट इज शॉर्टकट ऑफ दिस रिएक्शन, समझो इसको जरा सा। शॉर्टकट में क्या करते हैं, ये जो HOX है ना, X will attach to add to triply bonded carbon which has no hydrogen, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और ये दोनों कहां पे अटैच होंगे, एड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एज हाइड्रोजन एटम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लॉजिक, देख रहे हो यहाँ पे कैसे हो रहा है। मैं रिएक्शन से दिखाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल देखो, ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। और ये एक एग्जांपल ले लेते हैं ना यहाँ पे, दैट विल बी बेटर। इफ आई एम टेकिंग हियर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इसमें रिएक्शन कराए किससे, HOCl से। तो अब पता है यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा। Here we take this what, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या अटैच होने वाला है, H और Cl। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी व्हाट, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O एंड CH2Cl। आ गया समझ में। ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, ठीक है। गॉट इट। गुड, चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे थे, अब नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक का देखते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, दैट इज व्हाट, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ओ माय गॉड, सो सॉरी, ठीक है चलिए। नंबरिंग करके IUPAC नेम लिख सकते हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, IUPAC नेम लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 1 फ्लोरो ब्यूटेन 2, राइट। ये रिएक्शन होगा। अच्छा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है वो अल्फा, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो दैट वे दिस इज व्हाट, अल्फा कार्बन, ठीक है। ये भी अल्फा होगा, बट इस अल्फा पे हाइड्रोजन अटैच है, दैट वे इज कॉल्ड व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए, तो हमने बताया कि कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं अल्काइन से। तो पहले यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। अल्काइंस गिव nucleophilic addition only with HOH, HCN, ROH and RCOH। ठीक है, ये रिएक्शन देता है अल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे होंगे रिएक्शन वो देखते हैं अभी। इससे पहले देखने जा रहा हूँ एडिशन ऑफ वाटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस गिव द अल्डेहाइड कीटोन। ये अल्डेहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में भी आता है। तो देखते हैं पहला, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर क्या है देखते हैं। जब कभी अल्काइन रिएक्ट करता है वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, राइट, अबाउट 40% होता है ये, एंड सॉरी H2SO4 एंड HgSO4 ऐसा लेंगे हम लोग। ये 40% होता है अप्रोक्सीमेट, और ये 1% लेते हैं, बट ये मेंशन नहीं रहता कभी कभी, नो नीड। तो यहाँ पे रूल जो होगा कैसा होगा, एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ, एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये पार्ट कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये कैसा होगा पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है और यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, नहीं है यहाँ पे। तो जो OH माइनस है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो कहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा, और ये यहाँ पे अटैच होगा। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, RCOH, दिस विल बी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे H और H। बट हमें पता है कि ये कैसा इनॉल फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इनॉल फॉर्म, राइट। इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटो फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड व्हाट, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म या फिर रीअरेंजमेंट होगा क्या यहाँ पे, वही, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये जैसे ही शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द रीजन। सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, we get this product like RCO, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2, दिस इज कीटोन।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये एच यहाँ पे आ जाएगा, हाँ कंफ्यूज मत होना ये। तो दिस इज द रिएक्शन। ये क्या बना अपने पास, कीटोन। ठीक है, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो भी सिंपल एडिशन है। शॉर्टकट देखना होगा तो शॉर्टकट क्या हो रहा है यहाँ पे, आप समझो ना यहाँ पे जरा सा। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, एक लाइन में रिएक्शन लिखने की बात करूं तो कैसा होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और हमें ऐड क्या करना है, एच ओ एच, H2O in presence of HgH24 and H2SO4। तो जरा देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच कर दिया और H2 यहाँ पे अटैच कर दिया। वही तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच होगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, और प्रोडक्ट बन गया। वेरी सिंपल। व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, डायरेक्ट अगर लिखना है आपको, मैकेनिज्म या और चीजें नहीं समझनी है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया ना, खत्म, कीटोन फॉर्मेशन हो गया। राइट। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो सिमेट्रिकल अल्काइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि समझो यहाँ पे ना, अगर मैंने ऐसा कुछ रिएजेंट ले लिया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, both alkyl group is same, और here I am going to add this water, so what product will get here, एक जगह पे O देंगे और यहाँ पे H2 देंगे, और what product will get here, this is the product final O CH2R, that's all, in presence of what, H2SO4 and HCSO4। getting my point। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, देन व्हाट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अगर मैं बात करूं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, इफ आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल लाइक दैट CH3 CH2C triple bond C and CH3, here I'm going to add this water, and in presence of that reagent HgSO4 and H2SO4, अब सवाल ये उठता है कि कौन सा कीटोन बनेगा। यस, यहाँ पे दोनों कीटोन के फॉर्मेशन होंगे, तो हियर वी गेट द मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा अपने पास, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, प्लस एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और CH3, दैट्स ऑल, वी गेट दिस टू प्रोडक्ट। ठीक है, पेंटेन प्रीओन और पेंटेन टूओन। मीन्स यहाँ पे दोनों चांसेस है, ऑक्सीजन यहाँ पे और दो हाइड्रोजन यहाँ पे, या फिर दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे, दोनों चांसेस है, इक्वली चांसेस है, देन वी गेट द बोथ प्रोडक्ट। और ये आपस में कैसे होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्या राइट है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप बताओ क्या मिलने वाला प्रोडक्ट है। H2O, HgSO4 and H2SO4। ठीक है, क्या मिलेगा प्रोडक्ट, बताइए। और यहीं पे अगर मैं लिख दूं मेजर प्रोडक्ट, तो फिर क्वेश्चन आपका ट्विस्टेड हो जाएगा, क्योंकि अब आंख बंद करके शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे या फिर यहाँ पे होगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज द मोर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म की या स्टेप वाइज जाने की जरूरत पड़ेगी। कभी भी ऐसा कंफ्यूजिंग है तो स्टेप वाइज जाओ। अब पहला स्टेप में क्या होता है कि आपका एडिशन होता है HOH का, चलिए उसको देख लेते हैं। तो आपको पता है NO2, ऐसा कुछ हुआ, और यहाँ पे ले लिया HOH। रिएक्शन हो रहा है किससे, इससे, इसके प्रेजेंटेशन में HCSO4। सुनो ना, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो पहली बात कि यहाँ पे पहला H+ आएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। सवाल ये उठता है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, राइट ना। तो चलो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग। प्रोटोनेशन की बात कर लेते हैं, पहला प्रोटोनेशन। तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, देखो ON, ऐसा कुछ हो गया। अब सपोज यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे बन गया प्लस, और दूसरा जो कंडीशन है ना, ये हो गया यहाँ पे, ये CH और यहाँ पे C, यहाँ पे प्लस। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो समझो जरा, यहाँ पे ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो पता है ना आपको, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज होगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब लेस स्टेबल होगा। बट यहाँ पे ये क्या होगा, स्टेबल होगा मेसोनरी स्ट्रक्चर से, दैट विल बी मोर स्टेबल। और ये जब ज्यादा स्टेबल होगा तो इसके ऊपर ही अटैक करेगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखो, आई एम टेकिंग दिस मोर स्टेबल प्रोडक्ट।
So what will get here? प्लस, ठीक है, क्या प्रोडक्ट मिला यहाँ पे? एन, ये हो गया सी एच डबल बॉन्ड से, यहाँ पे क्या आ गया ओ एच, ठीक है, अटैच हो गया ये। अब होगा क्या, यहाँ पे फिर शिफ्टिंग होगी, राइट, हाइड्रोजन आएगा, टॉटामेरिज्म होगा। तो आफ्टर दिस टॉटामेरिज्म व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? ऐसा लिखते हैं, ये इनॉल फॉर्म इज व्हाट लेस स्टेबल एज द कीटो फॉर्म, सो दैट इज विल बी मोर। यहाँ पे लिखेंगे टॉटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म। क्या प्रोडक्ट मिला अपने को? O2N C H2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, गॉट इट? ये समझ में आया सबको? नोट डाउन दिस सेक्शन। Yes, sir. So when you are going to find out the exact product, stable product, तो सारी चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्ट से नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं अभी आगे। नेक्स्ट स्टेशन इज व्हाट? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अल्काइन विद द बोरॉन हाइड्राइड इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। कैसे होता है रिएक्शन, ये जरा देखते हैं। आर से ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे 3 मोल लेंगे हम लोग, हाँ? और यहाँ पे लेंगे BH3। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? आर CH डबल बॉन्ड CH थ्राइस B। नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट? ट्राइविनाइल बोरॉन। ट्राइविनाइल बोरॉन, ठीक है। अब ये जो ट्राइविनाइल बोरॉन है ना, ये बहुत यूजफुल रिएक्शन है, ठीक है। बट यहाँ पे ये आइसोलेट नहीं हो पाता। सी, आई एम राइटिंग दिस वन, आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस
trivinyl boron is very useful compound, but this cannot be isolated. Isolated because it still has 5 bonds. यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है and react with further with pH3 to give geminal diboron. तो ये फिर से रिएक्ट करेगा यहाँ पे, आप देखो ना रिएक्शन में, अगर if I'm taking this CH triple bond CH2 twice B treated with the BH3, so what product will get here? Again we get this what R CH2 CH, यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, देखो यहाँ पे मिला फिर B CH2 CH2 R twice और यहाँ पे मिल गया B CH2 CH2 R twice. ये जेमिनल प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे, ठीक है. इससे आइसोलेट करना ये यूजफुल है, बट ये इमीडिएट ये फॉर्म कर देता है, इसके लिए यहाँ पे इसका आइसोलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट इसका आइसोलेशन की बजाय हम लोग यहाँ पे ही स्टॉप कर देते रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हो जाएगा, ट्राइविनाइल बोरान बन जाएगा. और ये ट्राइविनाइल बोरान बनाने के लिए एक रिएजेंट यूज करेंगे, दैट इज व्हाट SiA2BH. चलिए देखते हैं वो रिएक्शन. Here can write this. So therefore vinyl borans are prepared by selective hydroborating reagent. ठीक है, known as diethynyl boron. Diethynyl boron. ठीक है, इसके प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगा. चलिए देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं फिर समझ में आएगा. So we can write this reaction like R C triple bond CH in presence of SiA2BH. ऐसा इसको रिप्रेजेंट करते हैं. So what product will get here? R C H double bond CH and here is what B SiA2. This is what in addition.
That is called what? Thin addition. In the sense ये H और ये ग्रुप जो है दोनों एक ही साइड में अटैच होंगे और ये फॉर्म करेगा प्रोडक्ट, राइट. अगर सपोज H की जगह RR ले लिया, then what will get here? RC triple bond CR. Now you can understood what I'm explaining here. So SI A2BH will give the product like RCH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे क्या आ गया बेटा R, और यहाँ पे आ जाएगा BSI. That is called what? Thin addition. ठीक है. ऐसा. एक और रिएक्शन देखते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे इसको यूज करते हैं. तो सी द रिएक्शन हियर, आई एम टेकिंग दिस RC triple bond CH. This is terminal alkyne treated with the SI A2BH. So it will give the product like RCH double bond CH, and here is what? BA2. और इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, नॉर्मली H2O2 एंड H. देखो जैसा हम लोग अल्कीन में करते थे ना ऑक्सीडेशन, OH माइनस अल्कलाइन के प्रेजेंटेशन में. तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास? RCH डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे आ गया OH. ठीक है. और जैसे ही OH आ गया, दिस इज व्हाट? इनॉल फॉर्म. और इनॉल फॉर्म ऑफ द टॉटोमेरिज्म विल गिव व्हाट? कीटोन या फिर एल्डिहाइड. इसका टॉटोमेरिज्म करेंगे अभी ना. तो आफ्टर टॉटोमेरिज्म जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? RCH2 C डबल बॉन्ड OH. ये बन गया एल्डिहाइड. दैट इज द रिएक्शन. ठीक है. तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया. तो इसका मतलब यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर दिया इसके प्रेजेंटेशन में, और इसके बाद फिर इसका हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया H2O2 और OH की प्रेजेंटेशन में, तो ये बन गया प्रोडक्ट. ठीक है. इसके रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ये जो एडिशन हुआ, क्या रूल्स है यहाँ पे? रूल 1, पहला क्या रखेंगे? ऐड ऑक्सीजन on one triply bonded carbon and 2 hydrogen on other triply bonded carbon. और वही तो किया फाइनली. अगर ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, इनको इंक्लूड करके इसको इंक्लूड कर देंगे, तो हो क्या रहा है? वही हो रहा है. इन दोनों के बीच में क्या किया? यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच कर दिया और यहाँ पे H2 अटैच कर दिया, प्रोडक्ट बन गया. राइट. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन केस ऑफ
terminal alkyne, right, add oxygen on terminal carbon. दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कहां पे पढ़ रहे थे? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां पे ऑक्सीजन अटैच करते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन. बट अब इस केस में क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन वहां पे, अगर टर्मिनल अल्काइन है तो हम वहां पे ऑक्सीजन अटैच करेंगे जहां पे जो टर्मिनल कार्बन है. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. दूसरा रूल क्या है इसका? रूल 2, टर्मिनल alkyne always give aldehyde. Third, symmetrical internal alkyne symmetrical internal alkyne gives only one ketone. चौथा है unsymmetrical internal alkynes gives two ketones. Two ketones which are isomers. Position, isomers and मेटामर्स. ये सारी कहानी हो गई इससे. ठीक है. अब इसी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो रूल है उसके हिसाब से क्या बनने वाला प्रोडक्ट. जैसे देखिए यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल लेते हैं, फटाफट एक रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे लिया पहला CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है. और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने. किससे कराया? पहला SiA2BH और दूसरा फिर क्या करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस. एग्जाम में चीजें ऐसे ही डायरेक्ट लिखी रहेंगे और आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. तो मैंने यहाँ पे क्या रूल बताया कि ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होगा और दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हमारा कहानी खत्म. तो जो प्रोडक्ट बना फाइनली क्या बन गया? CH2 बना और यहाँ पे क्या हो गया? C डबल बॉन्ड OH. आराम से फटाफट आप प्रोडक्ट बना सकते हो. शॉर्टकट के लिए ये सारे रूल्स हो गए. अगर यहाँ पे मैंने नॉन टर्मिनल ले लिया लाइक C ट्रिपल बॉन्ड CH3. अभी केस इस केस में मैंने ले लिया अगर पहला A2BH और सेकेंड आई एम टेकिंग दिस पार्ट H2H2O2OH माइनस. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? दोनों सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट. क्योंकि इनका नाम तो सेम रहेगा. आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो ऑक्सीजन, कहीं पे अटैच कर सकते हो हाइड्रोजन. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? देखते हैं. यू कैन गेट दिस CH2C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस
CH3 C double bond O CH2 CH3, nothing change here, right? लेकिन अगर ऐसा कुछ ले लिया मैंने यहाँ पे, suppose here I'm taking this CH3 CH2 C triple bond CH3 और इसका रिएक्शन कराया BH, और सेकंड क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन अल्कलाइन के प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, आपको पता है दो टाइप का कीटोन मिलेगा, एक मिलेगा CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है, बातें आ रही समझ में आपको? Yes, sir. राइट। नाउ आफ्टर दैट वी गो फॉर द एडिशन ऑफ कार्बिन्स, और आपको पता है कार्बिन से अटैच होता है तो क्या बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडिशन ऑफ कार्बिन्स। एडिशन ऑफ कार्बिन्स, ठीक है, देखते हैं। तो जैसे कार्बिन्स का एडिशन हम लोग अल्कीन्स में देखते थे वैसे यहाँ पे देखेंगे। सो 5 बॉन्ड से ऐड होगा और यहाँ पे 2 बार एडिशन हो सकता है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट कैन अटैच फ्रॉम द 2 टाइम्स। जैसे रिएक्शन देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा। सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस R से ट्रिपल बॉन्ड CR and here is what CH2, pair of electron. So what we'll get here, R C double bond CR और यहाँ पे क्या आ गया CH, ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका एडिशन एक बार और करा सकते हैं हम लोग, बिकॉज वन मोर pi bond present here, then it will give what R C सिंगल बॉन्ड R। अब एक अटैच होगा अपर साइड में CH2 और एक लोअर साइड। ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा, दैट बिकम बाईसाइक्लो, हाँ, ब्यूटेन। और ये क्या है अपने यहाँ, दिस इज व्हाट 1,2 डाई अल्काइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अभी अल्कीन के प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्काइंस मैंने बताया था कैसे ऐड होता है हाइड्रोजन, तो उसमें कोई फिर से देखने की बात नहीं है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में अल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन द अल्कीन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक लाइन, कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में आराम से हो जाएगा, ठीक है। Okay. Now I am going to explain after addition. Next part is what? Oxidation of alkynes. You understood that this addition of hydrogen already I had explained in the preparation of alkynes and preparation of alkenes. Yeah, preparation of alkenes from alkenes and alkynes, right?
You can consider that reaction. Now see this oxidation of alkyne. अब इसके ऑक्सीडेशन की बात करते हैं. अब यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन होगा वो टू टाइप्स होगा एज लाइक द अल्कीन्स. एक विदाउट क्लीवेज और एक विथ क्लीवेज. तो फर्स्ट वी डिस्कस हियर ऑक्सीडेशन oxidation without cleavage. Without cleavage oxidation. ठीक है. तो पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन बाय बेयर रिएजेंट. आपको अभी याद हो जाना चाहिए क्या है बेयर रिएजेंट. तो ऑक्सीडेशन बाय बेयर रिएजेंट. ठीक है. देखिए तो यहाँ पे रिएक्शन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर in presence of bare agent what KMnO4 alkaline KMnO4 OH minus और क्या रहता है यहाँ पे वाटर और कोल्ड कंडीशन. ठीक है. कोल्ड. तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर. ठीक है. एसिटिलीन के केस में क्या होगा. If I am taking this acetylene C triple bond CH, then what product will get here? So see this where if I am saying this bare reagent in the sense what alkaline KMnO4 and H2O. तो यहाँ पे एक intermediate formation हो रहा है like this HC double bond OC double bond OH और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया फर्दर ऑक्सीडेशन दैट गिव व्हाट ऑक्सैलिक एसिड. राइट. तो HOC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OOH and now it is what oxalic acid. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है ग्लाइऑक्सल एंड ऑक्सैलिक एसिड. गॉट इट. Yes. देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं सेकेंड वन. सेकेंड है ऑक्सीडेशन बाय O2. ठीक है. जरा देखिए यहाँ पे क्या है. SeO2 selenium oxide convert alkynes into the vicinal dicarbonyl compound. Convert alkyne to vicinal dicarbonyl compound. कैसे देखते हैं. जैसे यहाँ पे लिया मैंने R
C triple bond Cr, and it is go for the oxidation in presence of the HeO2, then it gives the product like R, say double bond O, C double bond OR. ठीक है, तो जहां पे भी ये टर्मिनल हो नॉन टर्मिनल हो, ये क्या बन जाएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन लिया तो आपको पता है यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन। नाउ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट, विद क्लीवेज, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो नाउ बी पार्ट, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। देखिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या हो रहा है, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया मैंने KMnO4, ठीक है, तो डबल जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर के दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट देखिए आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस रिएक्शन लाइक R C ट्रिपल बॉन्ड, नहीं वहां पे ऑक्सीलेट पे ही रुक जाएगा। ये SeO2 का जो भी रिएक्शन हो रहा है ना, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ही रुक जाएगा, उसका फिर से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इट मींस व्हाट, एसिटिलीन विल कन्वर्ट टू द ग्लाइऑक्सल ओनली, नॉट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सैलिक एसिड। जैसे यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ये अगर लिख लिया सी ट्रिपल बॉन्ड CH, समझा ना, और इसका रिएक्शन करा रहा है किससे, ऑक्सीडेशन करा है मैंने SeO2 से, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इट विल गिव ओनली व्हाट, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सल। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये फर्दर नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया मैंने KMnO4। अब KMnO4 जो होते हैं कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट, और यहाँ पे कोल्ड नहीं है, यहाँ पे हीट दे रहे हैं यहाँ पे, और वाटर नहीं है, तो दैट इज व्हाट, एज एट व्हाट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड क्लीवेज, दिस बॉन्ड विल ब्रेक हियर, एंड व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, definitely we get this what, 2 carboxylic acid COOH and R-COOH। एग्जांपल देखिए, और आप बताओ क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे। इफ आई एम टेकिंग दिस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C6H5 and it treated with what, KMnO4 alkaline under heat, so it gives the two acids. What acid will get, acetic acid as well as the benzoic acid. Got it, C6H5 and COH, so this is acetic as well as benzoic acid। ठीक है, लेकिन टर्मिनल कार्बन अगर है, टर्मिनल कार्बन पे जो फॉर्मिक एसिड बनता है, आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में फॉर्मिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। So if I am taking this terminal alkyne like this, C triple bond CH, then in presence of KMnO4 OH minus under heat, what we will get here? Now we are getting this CH3, right? COOH प्लस एक क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड, और हमें पता है कि ये फॉर्मिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। बात आई समझ में? यस, Yes, sir. फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन, मोर रिएक्टिव, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये फॉर्म करेगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स द रिएक्शन। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द कपलिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइल्स। This is one of the important reaction, coupling reaction. Alkynes also give this coupling reaction. चलिए देखते हैं coupling reaction क्या है।
coupling reaction of alkyne. देखिए क्या है कपलिंग रिएक्शन. तो पहला लिखते हैं अपना कपलिंग इन माइल्ड एसिड कंडीशन. देखिए कपलिंग इन माइल्ड एसिड कंडीशंस. क्या हो रहा है रिएक्शन यहाँ पे देखो. जैसे यहाँ पे लिया मैंने आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच. टर्मिनल कार्बन की बात कर रहा हूँ राइट. और दूसरा भी ले लिया मैंने एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर. अब इसमें होता क्या है ना कि एक जो अल्काइन है वो रिएक्ट करता है एज अ सबस्ट्रेट. और दूसरा जो रहता है वो कैसा होता है एज अ रिएजेंट. ठीक है. कंडीशन क्या है यहाँ पे. तो अंडर दिस कंडीशन CuCl and NH4Cl2, sorry NH4Cl, it will go for the coupling reaction and it form the product like R C H double bond CH C ट्रिपल बॉन्ड CR. क्या समझा आपको. ये H बेटा यहाँ पे मूव हो जाएगा. डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे. हाँ ये CH यहाँ पे अटैच हो गया और ये इससे अटैच हो गया. गॉट इट. दिस इज कपलिंग रिएक्शन. इसका नाम क्या होगा. इन और आइन दोनों है राइट. दैट इज कॉल्ड व्हाट. अल्किनाइन. ठीक है. अगर दो एसिटिलीन को मैंने ऐसा लिख दिया पे कपलिंग रिएक्शन या ऐसा सेपरेट लिख के बताता हूँ. आप बताओ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला आपको. एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच इन प्रेजेंस of CuCl and NH4Cl. What product will get here? Tell me fast. ये क्या बना अपने पास. We get this product like CH2 double bond CH C triple bond CH. ये तो मिला. इसका नाम क्या हो गया. यहाँ से नंबरिंग करेंगे. हाँ 1 2 3 4. इसको प्रेफरेंस देते हैं तो व्हाट विल गेट हियर. ब्यूट 1 इन 3 आइन. राइट है. Yes. नेक्स्ट वन ऑक्सीडेटिव कपलिंग. अब ये क्या होता है. यहाँ पे कैसा होगा. Oxidative coupling takes place by shaking the terminal alkynes in the solution of Cu2Cl2 and methanol. बेस के प्रेजेंटेशन में मैं डायरेक्टली रिएक्शन बताता हूँ आपको. एक लाइन का रिएक्शन सिंपल है. इफ आई एम टेकिंग दिस RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस
HC triple bond Cr, and in presence of what? CuCl, methanol, right? और क्या यहाँ पे पायरिडीन बेस, एटमॉस्फेरिक एयर। तो कपलिंग होने वाली इसमें, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, finally we get this what? R C triple bond C triple bond C R. This is called what? अल्का डाइआइन। एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं मॉलिक्यूल में तो क्या बोलते हैं उसको? अल्का, अल्का डाइआइन। गॉट इट? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट? ओजोनोलाइसिस। क्या है ओजोनोलाइसिस? देखते हैं इसको। See the ozonolysis. Can I move? Okay. देखिए यहाँ पे ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, जैसा वहां पे देखा था हम लोगों ने। प्रोडक्ट में बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस है, बस सिंपल सा वहां पे प्रिवेंट कर देंगे और वहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसका। मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अल्कीन अल्काइंस का रिएक्शन कैसे होता है ओजोन को मैं बताता हूँ आपको। देखो आर से ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, इसका रिएक्शन पहले करा दिया O3 से, और यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा। कैसा बनेगा इंटरमीडिएट वो जरा देखो यहाँ पे। आर सी आर, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसकी ब्रेकिंग होगी। एक सेकंड, ये करिए, ये हो गया। यहाँ पे इसका क्या करते हैं हम लोग? H2O। तो आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। आई एम सो सॉरी, दिस प्रोडक्ट इज रॉन्ग, आई एम सो सॉरी। वी गेट दिस प्रोडक्ट, ये यहाँ पे अटैच होता है और यहाँ पे ऐसा बनता है ये। दिस इज द रिएक्शन है, ये ओजोनाइट बनता है। 1 2 3 4, ये कंप्लीट हो गया। तो ये यहाँ पे ब्रेक होता है बॉन्ड। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा हो रहा है, ये वहां पे ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ऐसा। तो ये आपको पता है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड बना दिया। वैसे ही सेम यहाँ पे हो रहा है और ये यहाँ पे हो रहा है, डबल बॉन्ड बन गया। सो प्रोडक्ट विल बी व्हाट? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, डिफरेंटली मैंने
डैश। बट यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझो जरा यहाँ पे। हाँ, किसके प्रेजेंटेशन में लिया मैंने? एसिटिक एसिड। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जैसे ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एसिड बन जाएगा। यहाँ पे ब्रेक होकर के क्या बनेगा? यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। दिस इज व्हाट? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स ऑल। बट अगर इसको रिडक्टिव कराएंगे और H2 और Zn ले लिया यहाँ पे, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ग्लाइऑक्सिल पे स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन, राइट? मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, आप बताओ मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3 CH2 4 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका पहला करा दिया मैंने ओजोन से रिएक्शन, दूसरा H2O और एसिड मींस हाइड्रोलाइसिस किया एसिड। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? तो दो एसिड मिलने वाले हैं अपने पास। क्या मिलेगा? एक तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बन पूछ रहा हूं मैं, तो CH3 CH2 4 times and what we get here? COOH प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा अभी? CH3 CH2 3 times and what will get here? COH। तो जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक करके COOH अटैच हो जाएगा। दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। So what is this reductive ozonolysis? We stop at the glyoxal. So this is called what? Reductive, ठीक है, ozonolysis। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जरा देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में देखिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, और आपको पता है रिएजेंट बहुत सिंपल, ओजोन रहेगा, और सेकेंड हम लोग क्या ले रहे हैं? H2O और Zn ले लिया मैंने। तो ये प्रिवेंट कर देगा, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, क्योंकि वहां पे H2O2 जो बनता है ना, यहाँ पे देखो इस केस में बेटा क्या होता है ना, H2O2 बना और H2O2 फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट यहाँ पे H2O2 बनता ही नहीं। H2O2 जैसे ही बना, Zn ने उसको कंज्यूम करके फिर से Zn ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनली वी स्टॉप दिस रिएक्शन एट दिस स्टेप। ये बन गया, ठीक है। आया कुछ समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? Isomerization. Yes, it also gives this isomerization. Isomerization reaction. ठीक है। कैसे होगा यहाँ पे आइसोमेराइजेशन? ठीक है, तो अल्काइन का आइसोमेराइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अदरवाइज
in presence of alcoholic KOH or NaNH2. कैसे होगा रिएक्शन? So non terminal alkyne converts into terminal alkynes. कैसे देखिए, सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ रिएक्शन। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे ले लिया मैंने NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस एंड C6H12। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CNA. And if I'm taking here alcoholic KOH in C6H12, so what product will get here? Here we get this what? CH3 CH2 C triple bond here. That is the difference here, right? और इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, if I am taking this CH3 CH2C CH3, ये ऑलरेडी टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल अल्काइल अगर है, और इसको हम लोग किया किससे? अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दिया, या फिर मैंने करा दिया NaNH2 से। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है यहाँ पे? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 नॉन टर्मिनल, टर्मिनल कन्वर्ट होगा किसमें? नॉन टर्मिनल में, प्लस एक और चांस है, दैट इज व्हाट? डाइन CH डबल बॉन्ड अल्का डाइन में, या फिर नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल विल कन्वर्ट टू द नॉन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल कन्वर्ट टू द टर्मिनल। आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखिए, CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH अल्कोहलिक KOH हीट किया और NaNH2, क्या मिलने वाला प्रोडक्ट? CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो ऐसे प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म। तो ये सारे रिएक्शंस कवर हो गए इसके अल्काइंस के, ठीक है। और समरी के रूप में, ठीक है, आप खुद से रिएक्शन सारे लिख के रखिएगा। जैसे मैंने आपको अल्काइंस के लिए बताया था, वैसे ही आप बनाएंगे फॉर्मेट। अल्कीन्स के लिए बताया था, राइट ना? आपको याद है? कल का किया है कुछ होमवर्क? नहीं? यस सर। किया है? श्योर? यस सर, आधे हो गए, आधे बाकी है। हाँ, तो सारा वैसे ही सारे रिएक्शंस यहाँ पे इंक्लूड करके इसके लिए लिख देना, अल्काइंस के लिए, ठीक है।
एक कोई भी एग्जांपल लेकर के, सपोज मैंने यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ आपको तो कैसे दूंगा मैं, सपोज इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर, ये लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है, आपको समझ में आएगा ये। इफ आई एम राइटिंग हियर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CS, ठीक है। अब इसके लिए सारे रिएक्शंस लिख दिए मैंने। ये देखिए, ऐसे रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, आ रहा है समझ में? ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया X2, राइट, 1 मोल लिया मैंने, HX 1 मोल और 2 मोल से आप दोनों से रिएक्शन दिखा सकते हो, राइट। फिर ले लिया मैंने यहाँ पे SiA2BH, और फिर इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, H2O2 और OH माइनस के कंजंक्शन में ऑक्सीडेशन, आ रहा है समझ में? यही अगर एसिटिक एसिड में ले लिया या फिर HOH ले लिया मैंने, HOH किसके कंजंक्शन में हो रहा है बेटा यहाँ पे रिएक्शन, दैट इज व्हाट, एसिटिक एसिड, राइट। यहाँ पे HOH ले लिया पहले, फिर से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2SO4 और H3SO4, राइट है ना। फिर मैंने रिएक्शन ले लिया यहाँ पे HOX, ऐसा, या फिर KMNO4, सो ऑल रिएक्शंस। अरे समझ में मेरी बात, जितना भी मैंने बताया ओजोनोलाइसिस एसिड के उसमें प्रेजेंटेशन में, सारे रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस का एक फॉर्मेटिंग बना लेना है ऐसे, तो आपको ये चीजें कैसी होंगी रिवीजन के लिए, और यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, राइट है। Yes, sir. और ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन किसके लिए, एसिटिलीन के लिए अलग से है, ठीक है, वो रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, एसिटिलीन के लिए रिएक्शन है, डिफरेंट है। और इसके बाद फिर ये पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे डाइएन्स। डाइएन्स के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तब ये जाके पूरा हाइड्रोकार्बन अपना कवर होगा, ठीक है। तो अभी 2 टॉपिक्स बच गए हैं, सब टॉपिक्स तो हो गए, ये 2 टॉपिक्स बचे, कौन कौन से, डाइएन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में नॉर्मली बात करेंगे किसकी, बेंजीन की, ठीक है, टॉल्यूइन की, आ रहा है समझ में? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए।